Hello, student of class 12 science. Electronic devices continues, and now comes to the PN junction. PN junction. When one half of the pure semiconductor, like germanium or silicon, is doped by the P type and another half by the N type, then it is termed as a PN junction diode, or PN junction is formed. The plane divides the two halves or zone is called PN junction. So that we are going to discuss. P and N type. P type and N type. Here, just like this. Here, P type and N type. Positive majority charge carrier, positive holes, and here in case of N type, majority charge carriers are electrons, free electrons. And this particular junction is a PN junction. So what happens when these two P and N junction is formed? Just after the formation, what happens, that we are going to discuss. Now just to see, during the formation of the PN junction which formed P and N type, two phenomena takes place. Number one, a thin depletion layer or region is set up on both sides of the junction and is so called. Why depletion layer is known as depletion layer? Because of the devoid of free charges. Depletion region or depletion layer because it is depleted, just to see, depleted or devoid of free electrons carriers. Its width is about 1 micrometer, that is 10 to the power minus 6 meter. तो जैसे ही पीएन जंक्शन बना, ये पीएन जंक्शन यहाँ पर डिप्लीशन लेयर बन जाता है. एक डिप्लीशन लेयर, दैट इंटरेस्टिंग, नंबर वन. एंड सेकेंड थिंग हैपन्स, a junction or the barrier potential is developed across the junction. इस जंक्शन के अक्रॉस एक बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, whose value is about 0.3 volt for germanium and 0.7 volt for silicon. When PN junction is packed in as a semiconductor devices, it is known as PN junction diode. Right? अब यहाँ पर क्वेश्चन है, ये जंक्शन बना, डिप्लीशन लेयर बना, बैरियर पोटेंशियल जैसे यहाँ पर इसके अक्रॉस बैरियर पोटेंशियल VB यहाँ सेटअप हो जाता है. कैसे, क्या और डिटेल में हम लोग डिप्लीशन लेयर फॉर्म होता है तो उसके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं अभी. Now what happens when the depletion layer is formed? Formation of depletion layer. As the instant of the formation of PN junction, जैसे ही PN junction बना, holes are still in the P region and free electrons in the N region. And in case of your P region, the greater concentration of holes are there in the P region, means holes are the majority charge carrier, and in N type the free electrons are the majority charge carriers. So this difference in the concentration establishes a density gradient. ये जो difference हुआ concentration का, it establishes a density gradient across the junction resulting in a majority charge diffusion. ये difference के चलते अब N फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर और पॉजिटिव निगेटिव की ओर डिफ्यूजन होना शुरू होता है. होल्स डिफ्यूज फ्रॉम P to N region and electrons from N to P region and terminate their existence by recombination. जैसे ही यहाँ पर कॉम्बिनेशन हुआ, डिफ्यूजन हुआ, तो अपना एग्जिस्टेंस खो देता है. कौन? होल्स और इलेक्ट्रॉन्स. दिस रिकॉम्बिनेशन ऑफ द फ्री एंड द mobile holes and electrons produces a narrow region at the junction which is called depletion layer. And depletion layer because depleted or the devoid of the free and mobile charge carriers. However, it does contain fixed or the immobile positive and negative ions. ये देखिए, this is a diagram. कैसे यहाँ पर डिप्लीशन लेयर हुआ, ये निगेटिव इधर आ गया, यहाँ पॉजिटिव इधर आ गया, ये डिप्लीशन लेयर बना, ये सब अपना एग्जिस्टेंस खो दिया, कंबाइन हुआ, रिकॉम्बिनेशन,
and ultimately it forms the depletion layer. यहाँ पर मोबाइल चार्ज है, मोबाइल होल्स है, यहाँ पर भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड आयंस हो गया. Now, as depletion layer of p-n junction diode has no free charge carriers but only fixed rows of oppositely charged ions on its two sides. Because of this charge separation, an electric potential VB is established across the junction, even when junction is not connected to any external source of the EMF. कोई भी सोर्स से कनेक्टेड नहीं है ये, उसके बाद भी यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाता है, क्योंकि चार्जेस आर जस्ट लाइक द एरे अरेंजमेंट. इट इज नोन एज द जंक्शन ऑफ द बैरियर पोटेंशियल. इट स्टॉप्स फर्दर फ्लो ऑफ द कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन अनलेस सप्लाइड बाय द एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स. ये यहाँ पर फर्दर रिकम्बिनेशन स्टॉप हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस फिक्स्ड आयंस. रिकम्बिनेशन हुआ, आयनिक फॉर्म, ये चार्ज का एरे बन गया, फर्दर रिकम्बिनेशन स्टॉप हो जाता है और इसी के चलते यहाँ पर एक बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, ये दोनों के चलते. इट एंड दिस बैरियर पोटेंशियल फॉर जर्मेनियम एट द रूम टेम्परेचर 0.3 वोल्ट एंड फॉर सिलिकॉन इट्स 0.7 वोल्ट. 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए होता है ये बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू, और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, ये रूम टेम्परेचर पर. अब इसको अगर डायग्रामेटिकली हम ये दिखाएं ऐसे करके, तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल, इतना पोटेंशियल बैरियर, ये पर्टिकुलर वैल्यू होता है पोटेंशियल वैल्यू. द वैल्यू ऑफ दिस बैरियर पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द डोपिंग डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड द टेम्परेचर. ये तीन चीज़ पर डिपेंड करता है कि पोटेंशियल बैरियर कितना है, उस पर डिपेंड करता है. कौन कौन सा चीज़ है? डोपिंग डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड टेम्परेचर. टू समराइज द फ्यू पॉइंट्स, होल्स फ्रॉम पी साइड डिफ्यूज इनटू एन साइड वेयर दे कंबाइन विथ होल्स. ठीक है. नंबर 2, free electrons from n side diffuse into the p side where they combine with holes. The diffusion current, recombination current, decays exponentially both with time and the distance from the junction. Fourth one, due to departure of the free and mobile carriers from both sides, a depletion layer is formed. It contains only the immobile or the fixed ions of opposite polarity. नेक्स्ट पॉइंट इज योर पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस द जंक्शन इज सेटअप. अपने आप हो जाता है पोटेंशियल बैरियर. विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर डिपेंड्स ऑन द डोपिंग लेवल. डोपिंग, इफ द डोपिंग इज मोर, डिप्लीशन लेयर इज थिन. डिप्लीशन, अगर डोपिंग ज़्यादा है तो डिप्लीशन लेयर पतला होगा. डिप्लीशन, अगर डोपिंग कम है तो डिप्लीशन लेयर थिक होगा. ये समराइज जो हम लोग डिस्कस किए अभी. ओके. Now, as soon as the p-n junction is formed, we have discussed the depletion layer formed and the potential barrier. Then comes to the forward biasing of the p-n junction. What is the meaning of forward biasing? Forward biasing means if the positive terminal is connected with the positive terminal of the battery and the negative terminal of the diode or the p-n junction diode is connected with the negative terminal of the battery, then it is termed as the forward bias. And if the opposite is there, if the p type of the diode connects with the negative terminal of the battery and the n type is connected to the positive terminal of the battery, then what happens? It is a reverse bias. So we are going to discuss the positive forward bias and the reverse bias. So theoretical part is there. Try to understand these points. Forward bias p-n junction diode. If positive terminal of the battery connected to the p region and the negative terminal of the battery to the n region, this is known as the forward bias. As soon as the forward bias connection is there, connected,
व्हाट हैपन्स, जस्ट टू सी क्या होता है. होल्स आर रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल and the electrons repelled by the negative battery terminal, which results both electron and the hole are driven towards the junction where they recombine. तो जंक्शन जो है, जंक्शन, ये जंक्शन से यहाँ से पॉजिटिव रिपेल हुआ, इधर से नेगेटिव रिपेल हुआ, दोनों जंक्शन की ओर, रिपेल टुवर्ड्स द जंक्शन वेयर, और जंक्शन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन. देन एन मास movement of the electrons from the left and that of holes to the right of the junction constitute a large current flow through the semiconductor. The crystal offers low resistance and forward bias, though there is movement of both electrons and holes inside the crystal. Only free electrons move in external circuit battery connected wire. जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होल्स का भी मूवमेंट होगा और इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट होगा, लेकिन ये जो कनेक्टेड वायर है इसके थ्रू केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही आएगा. द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज देयर ओनली इन द वायर. सो फॉरवर्ड बायस में क्या हुआ, ये है ऐसा यहाँ पर. इन शॉर्ट वी कैन से ये फॉरवर्ड बायसिंग है. और ये क्या है, व्हाट इज दिस सिंबल ऑफ द डायड. ऐसे छोटा ट्रायंगल बना लिए, एक वर्टिकल लाइन, द ट्रायंगल पार्ट इज योर पॉजिटिव एंड द वर्टिकल लाइन इज योर नेगेटिव. P to P एंड N to N, फॉरवर्ड बायसिंग. जैसे फॉरवर्ड बायस हुआ तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ये होल्स को रिपेल करेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव रीजन जो है एन रीजन ऑफ द सेमीकंडक्टर, यहाँ पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन से इसको रिपेल करेगा, दोनों यहाँ, और ये रिकम्बाइन होगा. तो ये जो डिप्लीशन लेयर बना हुआ था वो नैरो हो जाएगा. जब नो बायस था, यहाँ पर देखिए जब फॉरवर्ड बायस हुआ तो ये डिप्लीशन लेयर बिकम्स थिन, डिप्लीशन लेयर बिकम थिन, ये यहाँ पर. तो इसका मतलब, एंड दिस डिप्लीशन लेयर व्हेन इट बिकम थिन इट conducts the current, means the charges are recombined, so current is there. So in the forward bias p-n junction works, केवल फॉरवर्ड बायस में ये काम करता है. इसका एग्जांपल एलईडी में भी हम लोग अगर चेक करते हैं तो उसमें भी हमको मिलेगा. अगर फॉरवर्ड बायस में एलईडी कनेक्टेड है तो क्या होगा, लाइट ग्लो करेगा. अगर निगेटिव में है या रिवर्स बायस में तो कनेक्ट नहीं करेगा. एलईडी क्या हुआ, वो भी एक तरह का डायड है. उसका डायग्राम देखिए ऐसा, ये सब क्या है, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायड, लाइट एमिटिंग डायड, ये सिंबल है एलईडी का. तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ कम्स द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड बायसिंग. VI characteristic. The forward current rises exponentially with applied forward voltage. At room temperature, a potential difference of about 0.3 volt is required before a reasonable amount of forward current starts flowing in germanium junction. Right? The minimum voltage, this minimum voltage जिसके बाद करंट बढ़ना शुरू होता है, दैट मिनिमम वोल्टेज इज नोन एज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कट इन वोल्टेज और नी वोल्टेज. व्हेन अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीजेस बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड वैल्यू, द फॉरवर्ड करंट राइजेस शार्पली. सी द डायग्राम, जस्ट सी द डायग्राम, फॉरवर्ड करंट एंड द फॉरवर्ड वोल्टेज. यहाँ पर ऐसे पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, इनिशियली करंट नहीं बढ़ रहा. व्हेन आफ्टर रीचिंग टू सर्टेन वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल, देन करंट इंक्रीजेस शार्पली. इस तरह से करंट बढ़ना शुरू हुआ. जिस वोल्टेज के बाद, जिस फॉरवर्ड वोल्टेज के बाद करंट शार्पली इंक्रीज हुआ, दैट इज नोन एज द फॉरवर्ड और कट इन वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज. यही है थ्रेशोल्ड वोल्टेज. ठीक है. अब ये जो अभी हम लोग डिस्कस किए कि एज इट इज़ ऑफरिंग लेस रेजिस्टेंस
इन केस ऑफ द फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस कम होता है। उस रेजिस्टेंस में क्या बोलते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए क्या हो गया, हमको अगर रेजिस्टेंस निकालना है, फॉरवर्ड बायस जंक्शन हैज़ अ लो रेजिस्टेंस। तो देखिए फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ अगर हम ऐसे करके प्लॉट किए, ये हो गया डेल वी, ये हो गया डेल आई, ये जो स्मॉल एंगल है थीटा, इसका हम लोग इससे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा हो गया। एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द रेजिस्टेंस। हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द रेजिस्टेंस इन दिस केस, टू फाइंड द कॉट ऑफ थीटा। कॉट थीटा निकाल देंगे, दैट इज द बी बाई पी, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो दैट रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इक्वल डेल वी बाई डेल आई, और कॉट थीटा निकाल लिए, वही पी बाई बी बाई पी, आर एफ रेजिस्टेंस ऑफ द फॉरवर्ड बायसिंग। So this resistance is known as the dynamic resistance or AC resistance of the junction. This is all about the forward biasing. Then comes to the reverse biasing. Reverse bias PN junction, when P-type connected, P-type of what? Diode connected to the negative terminal and N-type of the diode to the positive terminal of the battery, it is known as the reverse biased. In reverse bias, holes are attracted by the negative battery terminal and electrons by the positive battery terminal. Hence, holes and electrons move away from the junction. So, depletion layer increases thickness. Since no electron and hole combination occurs, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल्स का कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, so no current flows and the junction offers high resistance. Also, width of the depletion layer increases. Just see the diagram. ये P to N and N to P, that is the reverse bias. अब यहाँ पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये क्या है, निगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव ऑफ द बैटरी। होल्स एंड द निगेटिव ये अट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पर होल्स एंड द पॉजिटिव ये अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये थिकनेस जो है डिप्लीशन लेयर का वो इंक्रीज हो जाएगा। ये डायग्राम देखिए, ऐसे सिंबल डिप्लीशन लेयर जब बायसिंग नहीं था, जब बायसिंग हुआ तो देखिए डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, इसके विड्थ से ज़्यादा हो गया, मीन्स ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा, ठीक है। विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस यहाँ पर। नाउ जस्ट टू सी रिवर्स सैचुरेशन करंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हियर इन द रिवर्स बायसिंग। इन रिवर्स बायसिंग प्रैक्टिकली नो करंट flows due to the majority charge carrier, yet there is a small amount of current, बहुत कम अमाउंट का करंट रहता है इन माइक्रो एम्पियर ड्यू टू द फ्लो ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन, बिकॉज अप्लाइड वोल्टेज एक्ट्स एज अ फॉरवर्ड बायस फॉर दीज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। मतलब क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए रिवर्स बायसिंग फॉरवर्ड बायस जैसा काम करेगा। फॉर दीज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूसेस अ स्मॉल करंट नोन एज द रिवर्स करंट और रिवर्स सैचुरेशन करंट और लीकेज करंट। इसका 3 नाम है, रिवर्स करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट और लीकेज करंट। सिंस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी कैरियर्स आर थर्मली जनरेटेड, दैट इज आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं लीकेज करंट को, is so this thermally generated minority charge carrier, so I naught is temperature dependent, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लीकेज करंट बढ़ेगा। जैसे एक अकॉर्डिंग टू वन डेटा, आई नॉट इज फाउंड टू डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज फॉर जर्मेनियम एंड फॉर एवरी 6 डिग्री राइज इन सिलिकॉन, राइट। सो नाउ कम टू द डायग्राम, सी द डायग्राम how the VI characteristic behaves in case of reverse bias. This is the reverse bias, reverse VI characteristics। ऐसे करके हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में बना रहे हैं इसको, रिवर्स बायस है, इसीलिए यहाँ पर Y एक्सिस में करंट एंड X एक्सिस में रिवर्स वोल्टेज। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों का कंसिडर किए हैं, यहाँ पर
पोटेंशियल बढ़ाए, नहीं बढ़ा, वो लीकेज करंट जो था वो धीरे धीरे बढ़ा, फिर वो इंक्रीज हुआ। ऐसे इंक्रीज हुआ मतलब क्या, थोड़ा सा इंक्रीज होता, माइनर इंक्रीजेस, ये सिलिकॉन के लिए और ये जर्मेनियम के लिए। एंड दिस करंट, दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विच इज अ सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन रिवर्स करंट, इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यू रिमेंबर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए ये वाला करंट, मेजॉरिटी का कोई रोल नहीं है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है यहां पर रिवर्स बायस में। ना आई नॉट, ये जो आई नॉट का वैल्यू आया, ये सैचुरेशन करंट, आई नॉट बिकम्स कांस्टेंट क्विकली। आई नॉट यहां पर ये कांस्टेंट हो गया, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। मान लेते हैं अगर हम टेम्परेचर, एज इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, अगर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, आई नॉट इज फाउंड टू इंक्रीज ओनली स्लाइटली। दिस स्लाइटली इंक्रीज is due to the impurities on the surface of the semiconductor. सेमीकंडक्टर के सरफेस में जो इम्प्यूरिटी है उसके चलते थोड़ा सा बढ़ता है करंट। दिस गिव्स राइज टू ए वेरी स्मॉल करंट कॉल्ड सरफेस लीकेज करंट। सरफेस लीकेज करंट के चलते, जो कि इम्प्यूरिटी ऑन द सरफेस ऑफ द सेमीकंडक्टर है, उसके चलते थोड़ा सा माइनर इंक्रीज होता है surface leakage current. In case of reverse bias, as we know, the resistance is very high. Reverse bias junction can be represented by a very large resistance. Reverse bias हम निकालेंगे तो del V by del I, जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लिया, del V है 15 वोल्ट और del I है 10 माइक्रो एम्पियर, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1.5 × 10⁻6 ओम, बहुत ज़्यादा। ठीक है। इफ रिवर्स बायस अप्लाइड टू पीएन जंक्शन, देन इट इंक्रीजेस। रिवर्स बायस इट इंक्रीजेस एट a point is reached when junction break down. अब हम लोग जो रिवर्स बायसिंग का वोल्टेज था उसको हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो क्या होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट राइजेस शार्पली। क्यों होता है ये? जैसे अब यहां पर एक अलग सा पॉइंट आ रहा है, वेन वी आर गोइंग टू इंक्रीज द रिवर्स वोल्टेज अगर हम बढ़ा रहे हैं रिवर्स वोल्टेज, तो क्या होगा, अब करंट इंक्रीज होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जो कि ब्रेक डाउन हो जाता है जंक्शन का, बिकॉज ऑफ द एनमास मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द होल। द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, कौन सा, रिवर्स वोल्टेज, इज नोन एज द ब्रेक डाउन वोल्टेज। देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेक डाउन, जंक्शन ब्रेक डाउन, नंबर 1 जेनर ब्रेक डाउन, नंबर 2 एवलेंच ब्रेक डाउन। जेनर ब्रेक डाउन क्या है? जेनर ब्रेक डाउन ऑकर्स फॉर हेवीली डोप्ड जंक्शन और एवलेंच ब्रेक डाउन ऑकर्स फॉर लाइटली डोप्ड जंक्शन। जैसे जस्ट ब्रीफ आइडिया इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ऐसे यहां पर तो ऐसे आया, सैचुरेशन हो गया, फिर अगर पोटेंशियल, रिवर्स पोटेंशियल को बढ़ाए तो एक ब्रेक डाउन होता है, जंक्शन का ब्रेक डाउन होता है एंड करंट इंक्रीजेस शार्पली। क्योंकि ब्रेकडाउन हुआ तो एनमास मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द होल, वो दोनों इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन करना शुरू करता है एंड करंट इंक्रीजेस शार्पली, एंड दिस इज द जेनर ब्रेकडाउन एंड द एवलेंच ब्रेकडाउन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द डायोड एज अ रेक्टिफायर।